سفارتی محاذ پر تیزی، سعودی وزیر مملکت خارجہ عادل الجبیر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ صبح پاکستان پہنچیں گے۔ دونوں رہنما وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے رابطے تیز کر دیے۔ ترکی، ایران اور بنگلہ دیش کے ہم منصوبوں کو فون۔ مقبوضہ وادی کی صورتحال بتائی، کہا انسانی حقوق کی پامالی پر پاکستان انسانی حقوق کونسل میں جا رہا ہے۔ کرتارپور راہداری پر پاک بھارت اعلیٰ سطح مذاکرات صبح ہوں گے۔ کرتارپور راہداری کھولنے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ گیس انفراسٹرکچر سرچارج کی مد میں 208 ارب روپے ٹیکس معافی کا معاملہ، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ کابینہ اجلاس میں عمران خان نے کہا، قومی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، کسی کو نہیں نوازا جائے گا۔ حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو مکمل تفصیل قوم کے سامنے رکھنے کی ہدایت۔ جو اس وقت آرڈیننس سامنے لایا گیا، یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے لایا گیا۔ کابینہ کی ڈیسیژن میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ نے فورینزک آڈٹ ان کمپنیز کا کرنا ہے۔ کسی سیکٹر یا فرد کو رعایت نہیں دی گئی، سارا معاملہ انتہائی شفاف انداز سے نمٹایا گیا۔ وزیر توانائی عمر ایوب کی بریفنگ، کہا گیس سرچارج جس مد میں لیا گیا وہ لاگو ہی نہیں۔ کچھ رقم سے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ وصول نہیں کی جا سکتی۔ فردوس عاشق اعوان بولی، معاملے پر حکومت پر کیچڑ اچھالی گئی تاکہ عام آدمی تک اس کا مثبت پہلو سامنے نہ آ سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو قید ہوئے 30 دن ہو گئے۔ ہر گلی، ہر چوراہے پر کڑے پہرے، گھروں میں قید کشمیری بھوک و پیاس سے نڈھال۔ قابض فوج نے جنت نظیر وادی جہنم بنا دی۔ الجزیرہ نے کو وہاں لے جانا ہے اس کا خطہ۔ ہم نے کراچی کو دہشت گردوں سے اطلاع کرایا۔ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت سے ہی وابستہ ہے۔ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے، ہم ملک کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں اس کا حق ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سندھ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے خطاب، خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کہا سندھ کے جوان محنتی، وفادار اور بہترین سپاہی ہیں۔ نوجوان ملک کا مستقبل ہے، ملک کو آگے لے جانا ہے تو میرٹ یقینی بنانا ہوگا۔ کراچی میں بارش کے بعد مسلسل مشکلات، سڑکوں پر جمع پانی اور شہر قائد کی موجودہ حالت، انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت۔ کورنگی کاز وے دوسرے روز بھی بند، کھڈو ڈیم اوور فلو، ملیر ندی کے قریب مکانات زیر آب، ساحل پر طبی فضلے کی بھرمار، شنیرہ اکرم کا اظہار تشویش۔ کراچی میں ڈاکٹر عائشہ کے قاتل قانون کے گرفت میں آ گئے۔ 28 اگست کو ڈکیتی مزاحمت پر خاتون ڈاکٹر کا قتل ہوا، پولیس سے مقابلے میں ملوث گروہ کا سرغنہ زخمی حالت میں گرفتار۔ محرم الحرام سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد میں فوج کو اسٹینڈ بائی رکھنے کے احکامات جاری، 350 فوجی جوان سول انتظامیہ کی مدد کے لیے اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ بریگزٹ کے چکر میں برطانیہ میں نئے الیکشن کے امکانات بڑھ گئے، بورس جانسن پارلیمانی اکثریت کھو بیٹھے۔ ایوان میں ٹوری ایم پی فلپلی وزیر اعظم کے سامنے سے گزرتے لبرل ڈیموکریٹس کی صفوں میں جا بیٹھے۔ فلپلی کے ساتھ چھوڑے جانے کے بعد بورس جانسن کی حکومت اقلیت میں بدل گئی۔ رائے کے مطابق پی سی بی نے سابق کپتان مصباح الحق کو قومی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ بولنگ کوچ کی ذمہ داری وقار یونس کو سونپ دی گئی۔ پی سی بی کا دونوں سے 3 سال کا کانٹریکٹ ہو گیا۔ 5 رکنی کوچنگ پینل نے انٹرویوز کے بعد تقرری کی سفارش کی، جس کی چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے آئی نیوز کے نمائندے عقیل احمد سے۔ جی عقیل، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी शाहिद साहब, बिल्कुल 29 अगस्त को 5 रुकनी पैनल ने, जिसमें साबिक कप्तान इंतखाब जाकिर खान और गवर्निंग बोर्ड के रुकन असद खान, जो कि 5 रुकनी पैनल था कोचिंग के लिए, उन्होंने इंटरव्यूज किए जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए थे। हेड कोच के लिए मिसबाहुल हक, मोहसिन हसन खान जो कि खुद पेश हुए, उन्होंने कोचिंग पैनल के सामने इंटरव्यू दिया, जबकि गैर मुल्की कोच जो थे जिनमें वेस्ट इंडीज के कोटनी वाश, ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स और रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो कोचिंग पैनल है उन्होंने मिसबाहुल हक जो कि पहले ही कैंप कमांडेंट मुकर्रर किए गए हुए थे, उन्हें जो है हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। जबकि बॉलिंग कोच के लिए 2 उम्मीदवार थे, लेकिन वकार यूनुस के बाद सामने आने के बाद मोहम्मद अकरम दस्तगी और जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने हेड कोच के लिए मिसबाहुल हक को मुकर्रर कर दिया है, जबकि बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनुस को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और आज जो है पीसीबी इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसका ऐलान करेगा, और जिसके बाद जो है क्योंकि जो हमारी इतलात है मिसबाहुल हक क्योंकि कैंप कमांडेंट हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इंटरव्यू के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, अगर वो वापस आ गए हुए तो वो भी आज जो है मिसबाहुल हक के साथ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक तीनों जो मिसबाहुल हक को हेड कोच के लिए और बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनुस के साथ पीसीबी ने 3-3 साल का मुआहदा किया, और इनका जो मुआवजा भी है वो गैर मुल्की कोच जो है मिकी आर्थर जो थे। बहुत शुक्रिया आपका, हमें रिपोर्ट कर रहे थे अकील अहमद। मिसबाहुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर हो गए हैं। वकार यूनुस को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जबकि मिसबाह और वकार से 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अभी आपको खबर दें, लोअरदीर में मैदान तारान में जमीन के तनाजे पर 2 फरीकों में फायरिंग हो गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते आई न्यूज के नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। जी नासिर ज़ादा, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये लोअरदीर के इलाका मैदान तारान में पेश आया, जहां 2 फरीक़ैन के दरमियान मुबैना तौर पर जमीन के तनाजे पर एक दूसरे पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि दोनों फरीकों से 2-2 अफराद जो है इस हादसे में, और इस फायरिंग के नतीजे में जो वाक़या है इसमें 2-2 अफराद जो है वो जान भाग, और ये भी बताया जाता है कि 2 अफराद जो है वो जख्मी है। इसके साथ मैं ये भी बताता चलो कि लोअरदीर की जो पुलिस है वो फायरिंग के बाद उस मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में लिया है, ताहम वहाँ पर अब भी कशीदगी बरकरार है। जी ठीक है, नासिर ज़ादा हमें अपडेट करते। लोअरदीर में फायरिंग का वाक़या पेश है, इस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पतुकी में तहरीक कत्ल की वारदात का सुराग लगा लिया गया। कातिल सगा बाप निकला। बाप ने 3 लाख रुपए और 2 एकड़ जमीन कातिलों को देकर बेटे, बहू और पोती को कत्ल करवाया। मजीद जानते इसी बारे में आज न्यूज के नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद। बिल्कुल, पतों की जो है हबीबाबाद शेरगढ़ रोड पर 26 जुलाई को लर्जाखेज वारदात में फैमिली के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त डीपी अफसर अब्दुल गफ्फार कसरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइए क्या क्या ऐसी बड़ी वजह थी जिस वजह से इन्हें कत्ल किया गया? वालिद साहब ने तमाम सहाफ़ियों के सामने भी और हमारे सामने भी इकरार जुर्म कर लिया है, और वो उसके पीछे ये कह रहा है कि ये इसका किरदार ठीक नहीं था, बेटे का और बहू का भी, और मुझे इन पे शक था दोनों पे। फिर इसके अलावा ज़मीन का तनाज़ा भी और वो इनके बीच में चल रहा था, और 2-3 साल पहले बेटे को आग भी कर चुका था। तो बेटे की 2 शादियाँ थी, तो ससुर की हमदर्दी, बाप की हमदर्दी पहली बीवी के साथ थी, तो वो सारी ज़मीन उसके नाम पे करना चाहते थे, जबकि बेटा चाहता था कि दूसरी बीवी के नाम पे सारी ज़मीन की जाए। तो ये तनाज़ा था, जिसकी वजह से आखिरकार आके इसने बंदा हायर किया, उसको पैसे दिए और बंदे को मरवा दिया, बेटे को मरवा दिया। जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस केस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था, और पतों की पुलिस की और पूरी कसूर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि मुलज़िमों को ट्रेस आउट किया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो वर्षा हैं उनकी अपील है कि अब उन्हें सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिल सके। जी, रायगढ़ में मेहनत कश के जवां साला बेटे को रेलवे यार्ड में कत्ल कर दिया गया। रेलवे पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मजीद जानते इसी बारे में आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। आसिफ, ये क्या मामला है? मोहल्ला मुर्तज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेहनत कश जुल्फ़कार अली के जवां साला बेटे दानिश अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए। इस हवाले से हम वालिदैन से जानते हैं कि उनका क्या मुतालबात हैं। हमारा नौजवान बेटा बेदर्दी से कत्ल किया गया है, और हम अपील करते हैं इमरान खान से कि हमें इंसाफ दिया जाए,
और मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। मेरा नौजवान बेटा बेनक मारिया गया, मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, मेरा सारा कुछ उजड़ गया, मैं की करा, बेदर्दा मेरा बच्चा मारिया गया। बस जी, जैसा कि आपने जाना कि वालिदैन गम की शिद्दत से निढाल हैं। उनका मुतालबा है कि रेलवे पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अमली इक़दाम करे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ का भी मुतालबा किया है। जी, गुजरात में शौहर ने बीवी से झगड़े के बाद 4 कमसिन बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। मकामी लोगों ने बाप और 3 बच्चों को बचा लिया, एक की तलाश जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज अहमद से। एजाज, बताइएगा इस बारे में। जी शायद ये अफसोसनाक वाक़या जो है आज अभी रात के वक्त पेश आया है। यहाँ पे गुजरात की सारों की नहर है, जहाँ पर गुजरात का जो मल्ला ईदगाह है, इसके राशि 30 साल है, शवेज इसका नाम है। इसने अपने 4 बच्चों के साथ जो है वो बीवी के साथ पहले झगड़ा हुआ और फिर ये उसी गुस्से में आया और ये नहर पर चला गया और इसने इसमें छलांग लगा दी है। और इसके नतीजे में इसका एक 12 साल का बेटा जो जैरी है वो डूबकर जान बाग हो चुका है। जब इसने छलांग लगाई है तो मुकामी लोगों ने इसके 8 साल बेटे हैरी और 4 साल बेटा इसका शमून है और 5 साल का इसका एक बेटा शवाल और इस शवेज को जो है वो जिंदा बचा लिया है। और यहाँ पर जो है अभी पेट्रोलिंग पुलिस और इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो मौका पर पहुंच चुकी हैं और बच्चा जो डूब चुका है इसकी तलाश भी जारी है। दूसरी तरफ पुलिस जो है इसने जो खुदकुशी करने वाला बच्चों के साथ शवेज इसको हिरासत में ले लिया और इससे तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद शाकिर। अभी आपको बताएं, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां उनकी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आदिल अल जुबैर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला भी आज ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय हठधर्मियों के बावजूद पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोलने के लिए पुरअज़्म है। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत आला सतह मुज़ाकरात आज वाघा अटारी बॉर्डर पर होंगे। मुज़ाकरात में करतारपुर राहदारी खोलने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के मुसावदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल करेंगे। पाक फौज के सिपह सालार ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को मुल्क का फख्र और आने वाला मुस्तकबिल करार देते हुए उनका जज्बा बढ़ाया है। जनरल बाजवा ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल की बागडोर पाकिस्तान के नौजवानों को ही संभालनी है। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की माएँ मुल्क पर जान निछावर करने वाले सपूत जन्म देती हैं और जवान भी ऐसे ही हैं कि पसीने के बदले खून देते हैं। सालार का नौजवानों को पैगाम, अगर हम अपने आप को ईमानदारी से नहीं देखेंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमारे फौज में एक मेरिट का सिस्टम, आप लोग जो हैं नई जनरेशन जो है ये आप लोग उम्मीद हैं जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चला जाएगा। जनरल बाजवा ने यह वाज़ेह किया पाकिस्तान को वहां लेकर जाना है जहां उसका हक है। हमने पाकिस्तान को वहां ले जाना है जो उसका हक बनता है। ये सोचना पड़ेगा हम सबको कि हमने पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो मेरिट की बेस पे जा सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने कराची से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया। उन्होंने सिंध के नौजवानों को मुल्क का फख्र भी करार दिया। सिंध जो है पाकिस्तान की जान है। पाकिस्तान के बनाने में सिंध का बहुत अहम रोल था। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से ही वाबस्ता है। ये तब्दीली की शुरुआत है। जो मॉरल अथॉरिटी होती है ना, मॉरल अथॉरिटी, अखलाकी कुव्वत, वो फौजी कुव्वत से बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत से ही वाबस्ता है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द चेंज। आप लोग बड़े मजबूत बच्चे हैं, आप यकीन करें आप लोग समुद्र का रुख चेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सिंध के नौजवानों ने मुलाकात भी की। तलबा की जानिब से आर्मी चीफ को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े सनतकारों को टैक्स मुआफ करने का नोटिस ले लिया। कहते हैं किसी को टैक्स मुआफ नहीं किया जाएगा। कौमी खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई और मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। कौमी खजाने की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी का कोई भी टैक्स माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को साफ साफ बता दिया। काबीना की बैठक में वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स माफी की खबरों का नोटिस लिया और सनतकारों को 208 अरब रुपए की माफी के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म सादिर फरमाया। जो इस वक्त ऑर्डिनेंस सामने लाया गया
یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے لایا گیا اور فرٹیلائزر سیکٹر کے ایک اسپیشل آڈٹ کا میں نے بتا دیا جو کہ آرڈیننس کا حصہ نہیں تھا پر کابینہ کی ڈیسیژن میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ نے فورینزک آڈٹ ان کمپنیز کا کرنا ہے. وزیر اعظم نے JIDC آرڈیننس کو واضح کرنے کے لیے بل لانے اور دیگر قانونی پہلوؤں پر غور کے لیے ٹاسک وزارت قانون کو بھی سونپ دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وزیر قانون کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں قانون کے ہم آرڈیننس جو نکلا ہے اس کے اندر یہ فورینزک آڈٹ کی چیز ڈالتے ہیں. شرکا نے کابینہ کمیٹی برائے CPAC کے فیصلوں کی بھی توثیق کی اور اسلامی کیلنڈر کا معاملہ وزارت مذہبی امور کے سپرد کر دیا گیا. صدارتی آرڈیننس سے